This is chapter number 9, practice now 2. Part A, 240 grams and the ratio in between 240 grams and 1.8 kilograms. Okay, so this is 240 grams is to 1.8 kilograms. So you need to convert gram to the kilogram or kilogram to the gram. So that would be rather easy to convert kilogram to the gram. इसलिए कि यहाँ हमें मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा और यहाँ किलोग्राम में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा. दैट वुड बी रादर इजी. आई विल राइट इट लाइक दिस. 240 grams will be there will be the ratio between 1.8 multiplied by 1000. Okay, and what it would be 240 grams. अभी हमने रेशियो निकालना शुरू नहीं किया है. आई विल शिफ्ट इट ऑन राइट हैंड साइड. दैट इज 1800 grams. नाउ वी विल फाइंड आउट द रेशियो. रेशियो जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें यूनिट्स को मेंशन नहीं करते. ओके, कीप इट इन योर माइंड. दिस इज 1800. 0 will be cancelled. 2 ones are 2, 2 twos are 4, and 2 nines are 18, zeros are 0, 3 fours are 12, 3 threes are 9, and 3 zeros are 0. 2 twos are 4, 2 ones are 2, and 2 fives are 10. So this is the ratio between these two values. This is practice now 3, and there is the question 3a ratio 7 equals 8 ratio 5. Okay, I have written again this question over here because there are two ways to solve such type of questions. You need to find out the value of a. ठीक है, तो एक मेथड तो ये है कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन ले लेंगे. जिधर आपके पास वेरिएबल होता है उसको पहले लिखा जाएगा. ठीक है, 3a and 5. You will write it like this: 3a multiplied by 5, okay, and 7 multiplied by 8. आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं, बट at last you need to exchange the places. So that would be rather better कि जहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट आ रहा है उसको आप पहले लिख लें. 3 5s are 15. A equal 7 8s are 56. A equals 56 upon 15. Okay, and change it into mixed number. You know how to change. ठीक है, अब इधर देख लीजिए. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. जो आपका रेशियो होता है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं. 8/5. नाउ व्हाट विल यू डू? 7 and 5, 35. 35 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज
LCM is 12. Okay. Now what will you do? You will write it like this, multiplied by what it would be. अगर आप 6 को 12 बनाना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके. तो पूरी ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 5s are 10, 2 6 are 12. ओके. Likewise here y रेशियो z, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जी 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. 3 4s are 12 and 3 9s are 27. Okay. Now both the numbers are same. Value of y and value of y. And you need to find out x ratio y ratio z. Write it like this. 10 आ जाएगा आपका. x की वैल्यू क्या है? 10 है. y की वैल्यू क्या है? 12 है. और z की वैल्यू क्या है? This is 27. Okay. And what it would be? X ratio z, that is, what is x? X is 10. And what is z? Z is 27. This is your answer. So this is a review 9. And this is question number 1. If A ratio B is equal to 1 by 2 ratio 1 by 3 and B ratio C is equal to 3 ratio 4. We need to find out A is to B is to C and A is to C. ठीक है. तो यहाँ तो आपको whole numbers नज़र आ रहे हैं. But here you have got fractions. ठीक है. तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं. पहले A ratio B equals 1 by 2 1 by 3 and B ratio C equals 3 ratio 4. यहाँ चूंकि के fractions हैं, we will change it into whole numbers. और ये करने के लिए 2 और 3 का अगर हम LCM ले लें तो that would be 6. Multiply it by 6. Okay. दोनों को 6 से multiply कर देंगे. What it would be? 6 here, 6 here. 2 3s are 6. Let me write over here. 1 by 2 and 6 1 by 3, that is 2 3s are 6 and 3 2s are 6, that is 3 ratio 2. Okay. Now this is 3 ratio 2. A ratio B is equal to 3 ratio 2 and B ratio C is equal to 3 ratio 4. Which is being repeated? B is being repeated. Okay. B. Now what will you do? B की वैल्यू आपके पास 2 है और यहाँ B की वैल्यू आपके पास 3 है. ओके. ये नहीं है. B की वैल्यू 3 है. तो एक जगह 2 है, एक जगह 3 है. फर्स्ट यू विल टेक द LCM. व्हाट इट वुड बी? 2 and 3. As you know that there is no common factor between 2 and 3. So 2 3s are 6. 6 is the LCM. 6 is the LCM. LCM is 6. So we need to make this 2 as 6 and 3 as 6. So put an arrow over there and you need to multiply it by 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए? 3 से. और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए? 2 से. ओके. सो दैट वुड बी 3 3s are 9, 3 2s are 6 and that is 2 3s are 6 and 2 4s are 8. ओके. बस ये चेंज हो गया है. अब हमें लिखना है A रेशियो B रेशियो C equals what it would be? A is 9, B is 6 and B is 6 and C is 8. ठीक है. यहाँ देखिए ये दोनों सेम हो गए थे. This is here and no cancellation, simplification can be done over here. Now A ratio C, वरना simplified form में इसका आंसर दिया जाता है. A ratio C would be A is 9 and C is 8. This is exercise 9A. Question number 11. If P ratio Q is equal to 3 by 4 ratio 2, P ratio R 1 by 3 ratio 1 by 2. Let me write it again. P ratio Q is equal to 3 by 4 ratio 2 and P ratio R equals 1/3 and half. Okay. तो दोनों आपको इधर भी फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, इधर फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट चेंज इट इनटू होल नंबर. कैसे? 4 आ रहा है. ठीक है. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. लेट मी राइट ओवर हियर लाइक दिस. और यहाँ क्या आ रहा है? 3 and 2 LCM लिया तो क्या आ जाता है? 6 आ जाता है. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. ओके. लेट मी राइट इट ओवर हियर लाइक दिस.
4 multiplied by 3 by 4 and 4 multiplied by 2 by 2 and PR, that is equal to 6 multiplied by 1 by 3 and 6 multiplied by 1 by 2. Okay, 4 will be cancelled. This is 3. 4 2s are 8 and P ratio R, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 ratio 3. This is P ratio Q and P ratio R equals 2 ratio 3. ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए कि क्या चीज़ रिपीटेड है. P is repeated. ओके, मीन्स 3 and 2 इसको सेम करना है. तो दोनों कैल्शियम लेते हैं तो 2 3s are 6. ओके, यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 6 बनाने के लिए 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 बनाने के लिए 3 से, दोनों को. ठीक है, तो दैट वुड बी 2 3s are 6, 2 8s are 16 and 3 2s are 6, 3 3s are 9. ओके, ये देखिए ये सेम हो गया इधर. सो नाउ I need to find out the value of P, Q, R equal, what is P? 6. What is Q? 16. What is R? This is 9. ठीक है, और P and R, P ratio R, that would be P is 6 and R is 9. That's all. This is exercise 9A, question number 7. Question is, a certain amount of money is shared between Rufeng and Vishal. There are 2 boys and a certain amount of money is being shared between them. ठीक है, in the ratio 5:9. ओके, यानी रूफिंग का जो हिस्सा है वो कम है, पार्ट कम है, और द पार्ट ऑफ विशाल इज़ बिगर देन द पार्ट ऑफ द रूफिंग. विशाल का पार्ट ज़्यादा है, रूफिंग का पार्ट कम है. ठीक है, अच्छा, इफ़ रूफिंग गेट्स $44 लेस देन विशाल, विशाल का जितना पार्ट है उससे कितना कम है, यानी जितना उसका अमाउंट बनता है विशाल का, उससे रूफिंग का जो अमाउंट है वो कितना कम है, $44. ओके, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी. लेट द अमाउंट ऑफ रूफिंग be equal to whatever is there. 5 is there, so that would be 5x. Okay, same, let the amount, so let the amount of Vishal be 9x. whatever would be the ratios value. आपको एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए दोनों रेशियोज को एक खास फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ x. बोथ शुड बी सेम. ठीक है, एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए रेशियोज को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ x ओवर हियर. ठीक है, नाउ वी विल मेक द इक्वेशन. आगे क्या लिखा है, रूफिंग गेट्स $44 लेस देन विशाल. विशाल का अमाउंट ज़्यादा है, 9x. 9 है, 9 पार्ट्स हैं, उसमें से हम 5x को अगर माइनस कर देते हैं तो दैट वुड बी 44. ओके, ठीक है, इक्वेशन को समझिए. 9x यानी जो अमाउंट विशाल के पास है वो रूफिंग के अमाउंट से कितना ज़्यादा है, यानी अगर हम विशाल में से रूफिंग के अमाउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास 44 आ जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द इक्वेशन. सो हाउ वुड आई राइट इट, दैट इज़ 6 7 8 9 4x is equal to 44. So our x would be equal to 44 upon 4 11s are x is equal to 11. ओके, ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई है जिससे हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ रूफिंग, इधर मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ विशाल. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू 5x. व्हाट इज x? 11. सो दैट वुड बी 5 1s are 5, 5 1s are 5. ये आपके डॉलर्स आ गए हैं रूफिंग के. और अब हम अमाउंट मालूम करेंगे, एक्चुअल अमाउंट विशाल का. तो 11s are, दिस इज़ 99 एंड टोटल अमाउंट वुड बी, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू
55 plus 99, that would be 4 and $154. So this is question number 8 of the same exercise 9A. Amira, Hugson and Priya make a total of these toys in the ratio this. Find the number of toys Hugson makes, the amount of money Priya earns if she is paid $1.65 for each toy. This is let the number of toys Amira makes. कैसे निकालेंगे? That is 12x second Hugson is equal to 12x, and this is 16x, and the third Priya 12x, 16x and 17x. अब जल्दी से इक्वेशन बना लेते हैं. 12x plus 16x plus 7 equals, what is the total amount? 1530. I will write it over here. 1530 टोटल अमाउंट आ गया है इन सबको प्लस करके, इसलिए कि ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं. ओके, तो अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं. 5 and that is for 45x is equal to 1530. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 45, और जब आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो यू विल पुट इट ओवर हियर एंड ओवर हियर. ओके, तो हमें क्या मालूम करना था? द नंबर ऑफ टॉयज Hugson मेक्स. तो आपको सिर्फ Hugson पूछा गया तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल दीजिए. दैट वुड बी योर फर्स्ट पार्ट, आंसर हो जाएगा आपका. सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या मालूम करना था? द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ़ शी इज़ पेड $1.65 फॉर ईच टॉय. ठीक है, तो यहाँ से फिर आप यहाँ प्रिया की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू है यहाँ पुट करके, और वॉट एवर इज़ योर आंसर यू विल मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय $1.65, इसलिए कि हमें टोटल अर्निंग निकालनी है. किसकी? प्रिया की टोटल अर्निंग निकालनी है. अगर एक टॉय के लिए उसको इतने डॉलर्स दिए जाते हैं तो जितने उसके टोटल नंबर ऑफ टॉय, यू विल मल्टीप्लाई दैट प्रियाज नंबर ऑफ टॉयज बाय 1.65, you will get total earning of Priya. Okay, this is question number 4 of exercise 9B. Okay, what is that? Let me read. Michael has to pay $39 for 650 minutes of outgoing calls. So there are two things. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं. दो वेरिएबल्स होते हैं. यहाँ क्या क्या वेरिएबल्स हैं? उन्होंने कहा हुआ है कि माइकल जो है वो कितना पे करता है. दैट इज़ ही हैज़ टू पे द अमाउंट. ठीक है, जो अमाउंट वो पे कर रहा है. कितने मिनट्स हैं? दिस इज़ टाइम पीरियड. ओके, कितने टाइम पीरियड के लिए? 650 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स मेड यूजिंग हिज हैंड फोन. फाइंड द अमाउंट. हमें अमाउंट मालूम करना है जितना इसके ऊपर चार्ज होता है. इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट विच ही इज़ चार्ज्ड फॉर ईच मिनट. हर एक मिनट के ऊपर निकालना है. ईच मीन्स 1. सो हाउ वुड आई राइट इट? पहले मैं लिखूँगी अमाउंट. ठीक है, अमाउंट चार्ज्ड, और उसके साथ में लिखूँगी यहाँ टाइम. ओके, एंड अगेन अमाउंट एंड टाइम. ठीक है, तो यहाँ अमाउंट आपका क्या था? 39. टाइम क्या था? 650 मिनट्स. अमाउंट क्या था? वी डोंट नो. हमें फाइंड आउट करना है. हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, आई विल राइट हियर एक्स. एक्स हमने लिख दिया. टाइम कितना पूछा गया था? ईच मिनट. इसका मतलब है यहाँ 1 आ जाएगा. ओके, सबसे पहले इसको सर्कल कर लेना है. ठीक है, नाउ व्हाट विल यू डू? द सेम थिंग, प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसलिए कि एक्स मीन में आ रहा है. ठीक है, तो हम पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम.
Okay, so let me write here extreme product of mean would be 650 multiplied by x. इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, ठीक है, like this is equal to 39 multiplied by 1. Now what will you do? 650x equals 39 and x is equal to 39 upon 650. Now you will divide both of them to get the answer. And what would be the answer? That would be the amount which would be charged on Michael. And your answer would be in dollars. ठीक है, इतना अमाउंट जो है वो उसको 1 मिनट के लिए पे करना होगा, उस पर चार्ज होगा. अच्छा, नंबर 2, द अमाउंट ही हैज़ टू पे if he makes 460 minutes of outgoing calls. ठीक है, यानी आपको अब फिर से इसके अंदर जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो आपको अमाउंट मालूम करना है. ठीक है, और कितने मिनट्स के ऊपर अमाउंट मालूम करना है? 460 मिनट्स के ऊपर अमाउंट मालूम करना है. ठीक है, सो वही इंफॉर्मेशन हम ऊपर से लेंगे, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ 39 and 650. आई विल राइट इट लाइक दिस अगेन, अमाउंट time and amount time. Okay. तो कितना था अमाउंट? 39, जो शुरू में हमने लिखा था 650. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट, बट टाइम इज 450. okay, it's written over there, it's 460, sorry for that. The same process will be done over here. Product of extreme सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले ले लेते हैं एक्सेस के साथ, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए. दैट वुड बी 650x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 460. नाउ x वुड बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 460 अपॉन 650. 0 will be cancelled. Now solve it. That would be in dollars, your answer. Okay.